आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। दोबारा से अगेन आपको बताना चाहूँगा ये जो दिस इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड विच इज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द secondary teachers under समग्र शिक्षा अभियान and STARS project and this is the fourth batch of this type of training. In the series of these type of workshops we have already organized the workshops for the language teachers, TGT science and TGT non-medical. And this is the fourth batch of this training, which is being specially organized for the teachers who are teaching English at the secondary level. And this training had been organized under the chairmanship and under the guidance and supervision of our worthy district project officer, Shri Suman Kumar Minhas ji. Under his supervision and under his chairmanship, this workshop is going on here. And this is the 5 days workshop which will be continued up to 21st October 2023. And in these 5 days, in this training, almost 60 teachers are participating from all over the district. And I think there are 4 to 5 teachers from each block of district Chamba. And we have 15 blocks. And even in this training, some people from Pangi, educational block Pangi, I think are also participating here. And this is the first time that the people from Pangi block are here with us. So in these 5 days, the module which is designed for this workshop, which is specially for the English teachers, and we have the key resource person here who have been imparted training at the state level for the specific module on English language. And in this module we will discuss with the teachers about the different you can say the different problems related to the curriculum and the new technologies, new techniques and new methodologies which are coming day by day. And we will also discuss about the difficulties which a student face in learning this language. As with the passage of time there comes different types of changes in the curriculum and in the techniques, teaching techniques and teaching methodologies. And it is the need of the time to, I think it is the requirement of the time and it is the need of the time to make our teacher familiar with all those techniques, recent techniques and recent methodologies with which we can perfectly teach this subject and make this subject interesting for the students, for our students, because it has been usually said that this is a very complicated subject and students do not take interest in this subject. But if teachers do something extra to make this subject interesting for the students, then I think actually this is as I think this is a very easy subject,
but thinking differs from individual to individual, and we just have to make this thing clear to our students and other teachers and make the subject interesting for the students. And in these 5 days we will discuss all about these things here. And in addition to that, there is a specific module which has been prescribed by the state to this training, and that module will definitely also be discussed with all the teachers who are participating in this training. And in addition to the module, we will also discuss about the different problems which as a teacher we faces in the schools, and as a student faces in the school. So this is a 5 days capacity building program, and it will last till 21st of October, and I think this is all about this training. Thank you very much. To respond your questions or whatever you are asking them, these can be your queries or other things. And then the third objective of this listening skill is recognize and speak out the meaning of the words and the sentences asked by the teachers. That it can be that while teaching your class, the teachers may be giving them that speak these words and what their pronunciation is, and if they are listening to the your classes, and there is the active listening, as sir has said, that sir was actually saying about the vocabulary that we have two kind of vocabulary, passive as well active. In the same way, in listening skill, your class may be having listening to you, active listening or passive listening. This here or the difference between here and listening. So if your class is listening to you properly and they are having attention to your content, then they will be able to recognize and speak out the meaning of the words. Because what we do when we are having that comprehension or what kind of translation type of activity in our classroom, then we give the meaning of difficult words, and if they have listened whatever you have taught to them, they will be able to do this exercise. And the fourth objective of this listening skill is that the students will be able to recite whatever they have listened during this activity or during the classroom. For example, you have a poem in your class, and after or at the end of the class, you give them assignment or you give them this activity that recite the poem once or twice, and this activity will improve their pronunciation as well as, because first we as a facilitator or as a teacher, what we will do, we will recite the whole poem ourselves and pronounce each word correctly and properly. And if our class has listened to us properly and attentively, then what the outcome of that listening will be, that the class will also be able to recite whatever the poem or whatever the chapter we have taught to them. And then the last objective of this listening skill is that they will be able to organize ideas that they have listened. So for example, in composition, what we can do, अभी सर ने भी बताया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए. We must have vocabulary, but what kind of vocabulary it must have been that it must have been a active vocabulary, है ना. देखो vocabulary तो हम कर लेते हैं, हमारे पास रहती है vocabulary, but sometimes if we do not use this vocabulary again and again, that what happens, that vocabulary becomes a passive vocabulary. And to make that vocabulary an active vocabulary, what we can do, just for example, while teaching our classes, जैसे हम क्या करते हैं कि 4-5 difficult words लिखवा दिए, है ना, और हम बच्चों की जो वो होगी vocabulary, है ना, उसमें क्या रहता है कि और जो vocabulary है वो passive vocabulary बन जाती है, और धीरे-धीरे वो obsolete vocabulary हो जाती है और हम उसको भूल जाते हैं. उसको active vocabulary करने के लिए what we can do, we can organize that all vocabulary and make sentences
from them, and if we are able to form an incident, or we can say that if we have that much of composition, or we put some ideas in that, what we can do, we can make some short stories from those words. Okay, then anyone else who want to give me who have any idea that this can be also an objective of listening skills? कोई भी जैसे अगर किसी को लगता है कि बिल्कुल सर स्टोरी टेलिंग कैन बी कुछ और इसमें आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो प्लीज. Anyone else? No? हाँ विजुअलाइज कर सकते हैं. हाँ आप बताइए. वेरी गुड. विजुअलाइज कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, जैसे जब भी हम कोई चीज मतलब वोकेबुलरी होती है उसको विजुअलाइजेशन के मेथड से भी आप बता सकते हैं. इसको कैसे करके? जैसे सर जैसे बच्चे को किसी कंटेंट के बारे में बताया जा रहा है तो क्योंकि बच्चा जब हम किसी बच्चे को जब विजुअलाइज करके बताते हैं तो बच्चा उसमें उसकी जो सेंसेस होती है उसको प्रॉपर यूज करता है थ्रू द पिक्चर्स, थ्रू द डॉक्यूमेंट्रीज. और इसके अलावा जैसे बोला था कि स्टोरी टेलिंग वही इजी नहीं रहता है बच्चे को अंडरस्टैंड कराने का. इसके अलावा सर very well said. And another method that I generally prefer, and it is also a skill or an activity performed by SSB. Say for example, if person qualifies CDS and after that there is SSB for 5 days, वहाँ क्या किया जाता है? There is a picture composition. I think some of my colleagues who have come from army background, they know this picture composition. सर तो आप बताएंगे कुछ पिक्चर कंपोजिशन के बारे में? क्योंकि रहती है एसएसबी में, सर बताएंगे उसके बारे में. The picture will be displayed on the screen for 1 minute, and the participants has to write story for 3 or 5 minutes. First of all, he will give the introduction of the story, then he will write the main body of the story, and finally he will conclude the story. What is the conclusion of that story? There will be only 5 minutes will be given to write a story only, and the ideas of the different student will be vary from one to another. Thank you. Very well said sir, बहुत अच्छा. तो इस तरह की एक्टिविटीज से भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे क्लास में हमने बच्चों को जैसे क्या किया कि उनको कुछ वर्ड्स लिखवाए और उनके थ्रू हमने क्या किया, जो आइडियाज थे, जो वर्ड्स थे, उनको ऑर्गेनाइज करके फर्स्ट व्हाट वी डिड, firstly we make sentences of those words or the vocabulary that we taught to the students, and after that to make interest of the students in those words and sentences, what we can do, we can make a story from the ideas that this teacher delivered to the class, and the idea generated in his mind he will write on the paper also. And active participation of learner as well as teacher is obtained by this. Okay, so anyone else who want to add something else in this? बिल्कुल रोल प्ले के थ्रू हो सकता है, सिर्फ आप बताना चाहेंगे? रोल प्ले में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो स्टोरी हम रीड करवा रहे हैं क्लासरूम के अंदर बच्चों को, उसके ही कैरेक्टर बच्चों को बना दिए जाए. मान लीजिए उसमें 4-5 मेन कैरेक्टर्स हैं, तो वो अलग अलग कैरेक्टर असाइन कर दी जाए बच्चों को, वो आए और एक प्ले करे वहाँ पे, ताकि एक शॉर्ट फॉर्म में वो पूरी स्टोरी बाकी बच्चों को पता चल जाए कि कौन कैरेक्टर का क्या रोल था इसमें. तो इन द फॉर्म ऑफ रोल प्ले वी कैन ऑल्सो डू गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन लर्न इन एन ईजी वे एंड लर्न फास्ट लर्निंग उनकी हो सके. दैट्स इट. थैंक यू. बहुत अच्छा बोला सर ने. तो विक्रम सर आप बोलना चाहेंगे कुछ उसको इम्प्रूव करने के मेथड्स के बारे में? देखो हमारा जो 5-day कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है, इट इज mainly concerned with the methodology or pedagogy. Pedagogy is the methods to improve teaching learning. तो ये जो हमारी फर्स्ट स्किल है लिसनिंग, इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो हमारे लर्नर्स हैं उनकी
लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके बारे में अभी एक वन बाय वन हमने अपने स्लाइड के थ्रू चीजें बनाई हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड इज मेंटेन आई कांटेक्ट विद स्पीकर, लिमिट unnecessary distractions। देखो जब भी हम इवन when we were doing our BEds and education degrees, what the first and the foremost thing that our training, our teachers taught to us was that first thing in the class is to make eye contact with the students. If we are having an active eye contact with our students, then they remain in the class and we have hold over the class and what our class is doing and what and through that we can limit unnecessary distractions that we are having a classroom where most of the maximum students are teenagers, and in this age there are so many distractions, and if we have an eye contact with them, then we can limit their unnecessary distraction, and we can make them, we can take our learners in the path of learning, and the objective of our teaching will be obtained maximum. And the second is जैसा कि सर ने भी कहा था अभी कि visualize what the speaker is saying, कि इन्होंने यूज किया है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी शब्द हम मतलब जैसे हमारा जो स्पीकर है, अगर वो कुछ भी शब्द इस तरह का हमारी क्लास में बोल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, we can visualize that word. जैसे for example our teacher is saying that temple, so what we can, to remember the word temple, what we can do, we can visualize that temple is a place where worship is done and where people goes at the time of morning, and what the scene over there is that so through this method what we can do, when we visualize things, when we visualize words, then they becomes permanent in our memory. Okay, तो and इससे क्या होता है कि हम this will help us understand and stay focused. If we are visualizing things in our mind, then what will happen, we will be able to understand all these things easily, and we can stay there focused. All the unnecessary distractions will remain away from us. And the third option, the third method that I have used is don't interrupt the speaker and wait for a pause to ask questions. What happens that whenever we have having an active discussion in a classroom or wherever it is, what happens that if someone is saying, and it is obvious that the questions from the listeners will definitely come. The responsibility of a listener is to listen whatever is being spoken by the speaker, to listen carefully, and whatever the question is coming in our mind, we have to ask them whenever the speaker is having a pause or he is just concluding the, मतलब आपने ऐसा नहीं करना है कि जैसे if the speaker is saying, if the speaker is touching upon some very important topic and listeners क्या कर रहे हैं उसी टाइम से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, and what the things we want to deliver in the classroom, maybe that same topic does not come in our mind, और इस तरह की चीजें रहती हैं, तो what we have to do, we have to wait for the pause when मतलब इस तरह का questioning हो सकती है. And the next thing that we have covered in this listening activity, that what are the qualities of a good listeners. आपको अगर मतलब क्लासरूम में अच्छी लिसनिंग करनी है तो आप में कौन सी इस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट बनाया इसने, someone who focuses completely on what the other person is saying. कि अब स्टूडेंट ने क्या करना है कि अब टीचर तो अपने अकॉर्डिंगली what the content they have prepared, they are doing that. But the responsibility of the listener or the student is that whatever the teacher is saying, they have to completely focus on that and prepare notes and this type of things.
And the second option for second quality of a good listener is engages with their own idea in a thoughtful and comprehensive way. उनको क्या करना है कि कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं उसमें कुछ अपनी ऐड करके, है ना, कि वर्ड के आइडियाज को ऐड करके उसको और एनहांस करना होता है. And the third quality of a good listener is making a commitment to accept the information they are presenting and responding constructively. कि आपने क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मतलब दी जा रही है उसमें एक अच्छे उस इंफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट करना है और जो कुछ भी उससे मतलब आपसे कुछ पूछा जा रहा है एज ए गुड लिसनर उसको आपने कंस्ट्रक्टिवली उसका जवाब देना है. एंड नेक्स्ट स्लाइड है. अब कोई नहीं, इसको मैं अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आपको मैं इस पीपीटी को आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा. अगर ऐसा है लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं, है ना. आपके ग्रुप में ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको बना सकते हैं. फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. Any other thing that someone wants to As a speaker, we can inform the listeners well in advance that you will get answers of all the questions during discussion. If any found not answered will be discussed after completion of the discussion. That could be done so that interruption will not take place during discussion. Thank you, sir. For today's session. In this session, first of all, we introduced the listening skills and what listening skill and how we can make it effective and what the role of listening skill in our school is. And after that, what we did the objectives of listening skills, and then we focused upon the quality of a good listeners. So anyone else कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद हम सम अप करते हैं और आई थिंक टाइम भी हो ही गया. लिसनिंग स्किल के ऊपर रहने वाला है और लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज विदाउट लिसनिंग वी विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर आवर कंटेंट टू द स्टूडेंट्स. सो दिस स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू डिलीवर द कंटेंट एज वी वांट टू डिलीवर, whether that content is going to the minds of the children in that way what we want to deliver. So listening के objective जो है वो already मनोज सर ने डिस्कस कर लिए हैं और अभी हम इस सेशन में एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो आगे चलेंगे और लंच ब्रेक होने से पहले इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे. सो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया भी था कि हमारे पास दो रिसेप्टिव स्किल्स थी. उसमें एक थी लिसनिंग और दूसरी थी रीडिंग. और दो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स थी, एक थी स्पीकिंग और राइटिंग. तो आज हम लिसनिंग स्किल की बात करने वाले हैं. रिसेप्टिव स्किल्स में हमारे पास सबसे पहले आती है लिसनिंग स्किल. सो लिसनिंग स्किल के ऑब्जेक्टिव हो गए हैं. थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे पहले लिसनिंग स्किल से पहले अबाउट अ वर्ड दैट इज हियरिंग. एक हियरिंग है, एक लिसनिंग है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? आप पार्टिसिपेंट से ही मैं चाहता हूँ कि क्या आंसर हो सकता है हियरिंग एंड लिसनिंग के बीच में. व्हाट इज द मेन डिफरेंस? Getting the sound without having accepted it and attended it carefully is hearing, whereas receiving the sound with proper caring and with a motive to understand something out of it is listening. लिसनिंग बड़ा सही सबने यहाँ कहा कि हियरिंग है कि क्लासरूम में जैसे ये हॉल है, ये भी एक तरह का क्लासरूम हम मान सकते हैं. यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ पार्टिसिपेंट सपोर्ट करें अपने कुछ और काम में बिजी हैं तो सुन तो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो अपने ब्रेन में क्या मैसेज डाल रहे हैं वो प्रॉपर लिसनिंग नहीं हो पाए. तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा क्लास के अंदर सिर्फ सुन रहा है या उसको समझ भी रहा है कि क्या बोला जाए. लिसनिंग प्रॉपर कर रहा है वो या सुन ही रहा है सिर्फ.
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक और वर्ड जो समझना जरूरी है, दैट इज अटेंशन। हम जैसे ही क्लास में पहुंचते हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो हम कई बार बोलते हैं बी अटेंटिव इन द क्लास। हम ये नहीं कहते हैं बी अ गुड लिसनर या आप अच्छे से सुनो, हम ये बोलते हैं कि बी अटेंटिव इन द क्लास। अटेंटिव मतलब जैसे अभी भी मनोज सर ने इससे पहले कहा कि कुछ जो है वो जो एक एक्टिविटी हुई सिट एंड स्टैंड, तो वहाँ ये कह रहे थे कि भाई कुछ लोग जो है वो एकदम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या वहाँ से अनाउंस हो रहा है स्टेज से। तो ये अगर हमारी अटेंशन क्लियर है और पहले से हमें मीनिंग पता है कि हमें सिट जब बोला जाएगा तो वी विल स्टैंड, और जब स्टैंड के लिए बोला जाएगा वी विल सिट, तो ये अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अटेंशन नहीं है बच्चों की तो बच्चे जो हम बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो डायरेक्टली हम एक्टिविटीज़ के ऊपर आएंगे फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लिसनिंग स्किल्स, जिसमें ये जो एक्टिविटीज़ रहेंगी ये ग्रुप वाइज रहेंगी और इसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे और बहुत अच्छा ये सेशन रहे, मैं ऐसी होप करता हूँ। सबसे पहले ग्रुप 1 कहाँ है? ये ग्रुप 1। ओके, सो आई विल रीड वन सेंटेंस, सभी ध्यान से सुने, लेकिन ग्रुप 1 से मैं अटेंशन चाहता हूँ कि वो इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। फोन में आ रहा है, फोन में आ रहा है, कोई बात नहीं, फोन में, लेकिन मैं इसलिए रुक गया क्योंकि अगर मैं यहाँ से सेंटेंस रीड करूँगा तो अटेंशन जो है वो कहीं और है ऑलरेडी, तो फिर ये सेंटेंस नहीं सुनाई देगा और इस सेंटेंस को सुने बिना ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ग्रुप 1 के लिए है ये एक्टिविटी, तो ध्यान से सुने व्हाट आई एम गोइंग टू रीड। I saw my cat eat a bat and then a rat before my cat ran away. एक ही बार ये सेंटेंस बोला जाएगा। Now the question. Now we will go to the question. यहाँ पे सामने आ गया है, listen the sentence and identify the repeated sounds. Cat sir. नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन आ रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रिपीटेड साउंड्स? रिपीटेड साउंड्स कौन जो आपको लग रहा है बार बार रिपीट हुए वर्ड? आप लिख लें सर, ग्रुप 1 लिख लें इसको, जो आपको लग रहा है, जो आपने सुना है कितना वो हम परसीव कर पाए हैं। बाकी ग्रुप भी इसको लिख सकते हैं। आपने सर फर्स्ट क्वेश्चन का लिख लिया आंसर। नेक्स्ट, रेपिटेड साउंड जो आ रही थी, जो राइमिंग वर्ड्स थे हमारे, जैसे कैट, बैट, रैट, ये तो हम बच्चों के साथ क्लासरूम के अंदर, मैं क्लासरूम की ही बात करूँ, क्लासरूम के अंदर इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि बच्चा एक्टिवली सुने, उसकी लिसनिंग स्किल्स तभी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, ये ग्रुप 1 के लिए एक्टिविटी होगी सर। इस तरह की एक्टिविटी हम क्लासरूम के अंदर भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 1 का रिप्लाई ठीक है सर? बिल्कुल सर। ग्रुप 2, वेयर इज ग्रुप 2? ग्रुप 2 से कोई एक, मैं चाहता हूं यहां आगे आ जाए, और जो आगे आएंगे वहां से एक साइन उन्हें मिलेगा या कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, उनको बताना है कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो जो आगे आएंगे वो स्क्रीन की तरफ नहीं देखेंगे, कोई भी एक आ जाए और वहां से कोई एक एक्सप्लेन करेंगे उस स्क्रीन में क्या हो रहा है, और उनको आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में बोला जा रहा है। ये ग्रुप 2 वाले बताएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे वहां से कोई एक। तो सर कौन करेगा ग्रुप 2 से एक्सप्लेन? यस, वीरेंद्र सर। नहीं बोल सकते हैं आप सर, लेकिन मैंने भी नाम ही बता रहे हैं। अच्छा बोलना है।
एशियन गेम्स या विंटर गेम्स कोई टीम जब जीतती है फर्स्ट प्राइज पे तो बैच में जब खड़े होते हैं तो सबसे पहले उनका राष्ट्रीय गान चलाया जाता है। वो लेते हैं कि विन करने के बाद क्या लेते हैं वो जब कोई गेम विन करते हैं हेलो प्लेयर करते गेम जब भी हेलो धैर्य मनोज भाई साउंड करो जरा। साउंड करो। इसके लिए देश का सैनिक आम नागरिक अपनी जान को कुर्बान कर देता है। शहीदों की डेड बॉडी के ऊपर क्या लगा होता है अपने अपने ग्रुप वाइज, और हो सकता है यहाँ पर जैसे यहाँ ये प्रेजेंट होगी वैसे आपको प्रेजेंट करनी पड़े। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पोइम है 9th क्लास के अंदर। विंड, यस, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स On the shelf. don't throw down the books on the shelf. Now, first question, who is throwing down the books on the shelf? Wind. How many times the word don't is used? 3 times. Sir, group 3 के। मैं 3 के। अच्छा 3 के आप। Okay. Okay. So, very good response from the group 3. And wind is blowing strongly. True or false? True. क्यों? नहीं wind का है blowing तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से यही है एक्टिविटीज के जरिए कि हम बच्चों के बीच में इस तरह की एक्टिविटीज को डालें, और मैंने ये कुछ कोशिश की है कि आपके सिलेबस से ही वो चीजें निकालनी जाए ताकि हम क्लास उनके साथ इन चीजों को रिलेट कर पाए। और ये और एक्टिविटीज हमें पता है बच्चा ज्यादा सीखता है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यूज्ड? 3 times. Next. Mary Ford. Mention 2 rhyming words in the stanza. Group 4. 2 rhyming words थे इसके अंदर, अगर आपने ध्यान से सुना हो। वही बात है सर, अगर हमारी लिसनिंग स्किल अगर इम्प्रूव करेंगे हम, तो वहां पर ये स्टैंजा रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। और दिस वाज द स्टेज। ये भी उसी पॉइंट से लिया गया है स्टेंजा, विंड से, जो कि 9th के सिलेबस से ही है। रेन अगेन आर द राइमिंग वर्ड्स, और यू कितनी बार यूज हुआ है? 5 टाइम्स। 3 में भी 4 आया था, दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट, ग्रुप 5, लिसन केयरफुली। वेयर इज द ग्रुप 5? Yes. So, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Clear, sir? How many roads are separated in different directions? 2. Right answer. 2. So next question. What was the color of the forest? Yellow. Again, right answer. इनके लिए तालियां। 2 आंसर बिल्कुल
इस इमेज से हम क्या बताना चाहते हैं? अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करें तो यस सर। The image here as shown in the picture tells us about various paths in the life, because we will not get what we actually desire. We may get any kind of path and that will not be smooth as we preserve. So life can be according to situation, not according to our imagination. Yes, very right. जो ऑथर ने भी जो फेस किया कि दो पाथ उसे मिले एंड विच वन टू चूज, ये कई बार डायलेमा की सिचुएशन आ जाती है कि दोनों ही रोड पे चलना हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें एक चूज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे उसी टाइम? तो ग्रुप 5 की एक्टिविटी थी। नेक्स्ट है, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं अपने आर्टिस्ट से भी शेयर करना चाहूँगा कि जो ग्रुप के नाम इन्होंने रखे हैं वो बड़े अच्छे हैं। कॉन्फिडेंट, आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल, क्रिटिकल थिंकर्स, करेजियस, यस। और एक बात मुझे ये ना, कल मैं जब नाम सुन रहा था मुझे याद आ रहा था, एक आप जरूर गूगल करें, हॉलैंड कोड है एक, हॉलैंड कोड, उसके अंदर एक आता है रियाज़ेक, RIASEC। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने बच्चे का आफ्टर 10th स्ट्रीम डिसाइड करना चाहें तो रियाज़ेक में एक आपको PDF में एक फॉर्म मिलेगा, वो बहुत हेल्प करता है बच्चे की। हॉलैंड कोड है, उसके अंदर रियाज़ेक आएगा। तो रियाज़ेक का जो A है दैट वो A जो है आर्टिस्टिक के लिए यूज हुआ है, और उसका C जो है वो क्रिएटिविटी के लिए यूज हुआ है। तो वहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि नाम सारे निकल के आए हैं। तो वो रियाज़ेक जो है जरूर आप हॉलैंड कोड को स्टडी करें गूगल पे, RIASEC रियाज़ेक। और ये बताया गया है कि ये 6 ही पर्सनैलिटी है इंडिविजुअल, RIASEC। उसमें I इंटेलेक्चुअल के लिए ही है, S इज फॉर सोशल, E इज फॉर एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट ये था सर हमारा स्टेम, जो कि आपने बिल्कुल सही इसके आंसर जो है वो यहाँ दिए हैं। 2 roads diverged in a yellow bush, and sorry I could not travel both, and the one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा सभी पार्टिसिपेंट से कि कोई ना कोई एक्टिविटी आप जो है जरूर सोच के रखें। अभी हम इस सेशन के बाद भी कर सकते हैं और पोस्ट लंच जो हमारा सेशन होगा उस पर भी करेंगे। ग्रुप 6, ग्रुप 6 कहाँ है और क्या नाम है इस ग्रुप का? आर्टिस्टिक। सो हियर इज द सेंटेंस और द पैराग्राफ और स्टेंज, जो भी आप कह लें इसे। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Clear है sir? Answer the questions. Name the different awards talked about in the audio. एक करके सर। हाँ जी, पहला बताएं आप। पद्मश्री। नेक्स्ट, सेकंड पद्म भूषण, थर्ड पद्म विभूषण, भारत रत्न। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंग्रेचुलेशन। Name the person that received the award as stated in the audio. Bismillah Khan. Bismillah Khan. Right answer. What is the name of highest civilian award? आप लोगों के लिए बहुत इजी है ये एज अ टीचर, क्योंकि आपके सिलेबस से ही है। और नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये था ऑडियो, तो यहाँ से रीड आउट किया गया। ग्रुप 7, ग्रुप 7 कहाँ है? यस, सो ऑल द बेस्ट। डिसाइड कर लें किसने क्या कहना है। यस, Sally sells seashells by the seashore.
आपके ग्रुप में से किसी को ये बोलना है? She shells by the seashore. Sally sells and the seashells by the seashore. बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे शीशा बेचती है। कौन ट्राई करेंगे सर? दोबारा डिस्प्ले करूँगा। हाँ जी, के अंदर भी देख रहा था, तो पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे इसमें है एक I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten. ये जो टंग ट्विस्टर है, अगर आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज करेंगे तो बहुत ही बच्चे भी इंजॉय करेंगे और वो हंसेंगे भी। अगर बच्चा हंस रहा है क्लास में तो इट मींस कि वो इंटरेस्ट भी लेगा और आपकी क्लास जो है वो और अच्छा अचीव करेगी आपके सब्जेक्ट के अंदर। ये एक्टिविटीज जो है वो हम अपने देश में अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। ग्रुप 8 मेरे ग्रुप 8 वाले के साथ करनी है एक्टिविटी। ये है, क्लियर हो गया सर? आप सभी ने देख लिया मुझे मैंने क्या किया? एक बार ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आप इनको बताइए। Let me see, please. आपने कर दी, आप करो। मैं किसको बताऊं? आपने सबको बता रही यहाँ पार्टिसिपेंट। आप अपनी जगह ले सकते हैं। क्लैपिंग कर लीजिए ग्रुप 8 का। अब आप बताइए, मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया था। मैंने क्या किया था मैं बता रहा हूं आपको। ग्रुप 8 जो है मैंने क्या किया था और लास्ट में क्या हुआ। आई थिंक सेकंड में इस तरफ से इस तरफ हो गया। सेकंड में 2 हाथ रख दिए सर ने। अच्छा, मैंने एक रखा था, आपने एक बताया, मैंने एक रखा। सर ने 2 रख दिए। आप यहाँ से और कुछ भी नहीं है, ये है मिस कम्युनिकेशन कि हम ट्रांसफर कुछ और करना चाहते हैं, आगे कुछ और पहुँचते हैं। तो इस तरह से इस तरह की एक्टिविटी जो है हमें, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, क्योंकि हम कम्युनिकेट ही प्रॉपर नहीं करेंगे तो बच्चा सुनेगा क्या, वो अंडरस्टैंड क्या करेगा। तो ये चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज जब हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी टीचिंग के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत ही ये एक तरह से फन भी होगा क्लास के अंदर और बच्चे जो है वो इंटरेस्ट भी लेंगे। अब ये जो हमारा एक्टिविटीज़ का सेशन था जो यहाँ पर मेरी तरफ से होना था वो तो कंप्लीट है, लेकिन आपकी तरफ से कोई और एक्टिविटी जिससे कि बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, ग्रुप वाइज हम लेंगे। ग्रुप 8 से शुरू करेंगे तो ग्रुप 1 तक आएंगे। कोई एक्टिविटी, कुछ भी आपको लगता है कि ये भी किया जा सकता था यहाँ पर जो नहीं हो पाया।
capacity building capsule training. When I go to my classroom, so I'll just write or speak one sentence that I was called for capacity building training from 17 to 21 October 2023 at DIET Saru. So I'll just frame the questions to the student. On the basis of this sentence, how many questions can you frame? So students will make the questions based on the question mark words, that is where, when, how, who. So generally I make them to frame the questions on the basis of the answers that we have available in the sentence. Okay. So I think in this sentence we can frame 4 sentences, बिल्कुल 4 question mark sentences. बना सकते हैं कि अगर हम एक वर्ड दे दें उनको कि इस वर्ड से ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो हम अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो हमने पहले ही बात की, हियरिंग नहीं, लिसनिंग नहीं, अटेंशन चाहिए। उसके लिए अगर एक एक्टिविटी और भी कोई अगर 5-6 लोग आ जाएं या 3 लोग आ जाएं तो हो जाएगी। ये मनोज सर आगे आज कोई और या बनाना। तो जब मैं यहाँ से आप थोड़ा सा स्पेस ले लें, यहाँ क्योंकि ये पाँव के अंदर ये सब इस तरफ कर दें सर, और थोड़ा गैप रखें बीच में। जब मैं कहूँगा एप्पल तो आपको जंप करना है वंस। जब मैं कहूँगा बनाना आपको जंप करना है ट्वाइस, और जंप करना है आपको। एप्पल जब कहूँगा तो 1 स्टेप अहेड, और जब बनाना कहूँगा तो 2 स्टेप बैक। ठीक है सर, क्लियर है? और इस बीच में अगर मैं किसी भी और चीज का नाम ले लेता हूं तो आप जस्ट अपने जगह पे मूव करेंगे ऐसे सर्कुलर में जी, ऐसे मूव करेंगे और आप जैसे भी आपको, और आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। सो क्लियर है सर? सभी ग्रुप जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे उनको पता है, आप सभी को पता है जो बाकी बैठे हैं जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी जगह खड़े होकर ये जो मैंने कहा ये बोल सकते हैं। पहले कौन पार्टिसिपेंट बोलेगा? एप्पल बनाना बोलना बस, दैट्स इट। एप्पल नहीं बनाना एप्पल बनाना एप्पल बनाना बनाना एप्पल कैट। यस, तो थैंक यू सर, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। तो इस तरह से हम कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ें जो है वो बच्चों से करवा सकते हैं। 2 बच्चों के साथ एक एक्टिविटी को अलग से भी करवा सकते हैं, 1 2 कुछ इस तरह का, 3 कुछ इस तरह के आगे। या कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि लैंग्वेज इन्वॉल्व हो उसके अंदर। जैसे हमने एक एक्टिविटी करवाई थी ग्रुप, कौन सा ग्रुप है सर? 5। तो एक कलर आया था बीच में, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फॉरेस्ट? येलो। तो बच्चों को आगे बुलवा के कलर्स की पहचान तो उनको होती है, येलो के स्पेलिंग भी लिखवा सकते हैं। तो एक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारी जो लैंग्वेज है वो प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी बच्चे के अंदर। तो ये चीज़ें हम अपने अपने स्कूल्स में अलग अलग तरीके से कैसे बेटर कर सकते हैं ये हमें सब पता है। सिर्फ हम वहाँ पर चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में लाएं। नॉलेज हमें है, लेकिन कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, बट नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉलेज है लेकिन घर में बैठे, अप्लाई करने के लिए उनके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं, कहाँ अप्लाई करें। तो अप्लाइड नॉलेज पावर, इसलिए हमारे पास वो बच्चे हैं जिनके ऊपर इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और बच्चों से हम कुछ ना कुछ निकलवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, या फिर रीडिंग हो। इस तरह से ये हमारी 5 दिवसीय जो है वो कार्यशाला चल रही है अभी, जो कि 20 अक्टूबर से यहाँ पे डाइट में चली है, जिसमें पूरे जिला से कुछ हमने टीचर्स बुलाए हैं। ये अभी हम मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं यहाँ पे टीचर्स को, प्री प्राइमरी
कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। ये 5 दिनों की है जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी। हमारे 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी। हमारे ज़िला चंबा में 778 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेस जो है वो सक्सेसफुली चल रही हैं और लगभग 7,000 के करीब बच्चे जो है वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन 778 प्राइमरी स्कूल्स में इन छोटे छोटे बच्चों को अभी तक हमारे जो वहाँ पे जेबीटी टीचर हैं वही इनकी क्लासेस भी ले रहे हैं। तो इन जेबीटी टीचर्स को ही हम हर साल जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल करिकुलम के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग देते हैं और इस बार भी ये ट्रेनिंग सभी 778 के 778 टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी कड़ी में जो ट्रेनिंग है हमारी इस साल की उसमें 2 बैच जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो कि एक यहाँ ही डाइट में हमने बैच किया था, लगभग 60 टीचर्स वर देयर, और दूसरा बैच जो है वो पांगी में हमने किया है। पांगी के टीचर्स को इस बार हमने पांगी में ही लास्ट ईयर भी पांगी में ही हमने ट्रेनिंग दी थी और इस बार भी उनको वहीं पे ये 5 दिन की ट्रेनिंग दी है। यहाँ से हमारे जो की रिसोर्स पर्सन थे वो पांगी के लिए गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। तो इसी कड़ी में ये जो हमारा भी बैच चल रहा है ये तीसरा बैच भी हम इसको मान सकते हैं और इसमें हमने ये प्लान किया है कि 778 टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग देना जो है वो एक बहुत बड़ा टारगेट है। इसलिए हमने ये प्लान किया है कि हम हर एक ब्लॉक से हमने 4 टीचर्स बुलाए हैं और उनको यहाँ पे एज अ मास्टर ट्रेनर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसके बाद वो अपने अपने शिक्षा खंड में जा कर के ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट की ही रहेगी, बट वेन्यू जो है वो हर एक ब्लॉक पे हम रखेंगे और यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेके अभी यहाँ से 20 अक्टूबर को इस ट्रेनिंग का जो है वो क्लोजिंग है, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपने अपने ब्लॉक में जा कर के ब्लॉक में जितने भी प्री प्राइमरी टीचर्स हैं या जो प्री प्राइमरी टीचर्स जेबीटी हैं और प्री प्राइमरी की क्लासेस लेते हैं उन सभी को ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में मोटे तौर पर जो टीचर्स हैं उनको प्री स्कूल करिकुलम के ऊपर ही जानकारी दी जाती है कि छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, जिसमें बच्चों की एडमिशन कैसे करनी है, उनकी असेसमेंट का भी एक तरीका अलग है, छोटे बच्चों की असेसमेंट कैसे की जानी है, उनका रिज़ल्ट कैसे तैयार करना है, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजिटल सेशन जो है वो इनके साथ यहाँ शेयर किए जाएंगे। बट फोकस जो है वो हमारा मेन जो रहता है ट्रेनिंग का वो एक्टिविटीज़ पे ही रहता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो भी चीज़ सिखाई जाती है वो एक्टिविटी बेस्ड रहती है। तो पूरा का पूरा जो प्री स्कूल करिकुलम है NEP और NCF के हिसाब से जो बच्चों के साथ एक्चुअल में इन बच्चों को 2 साल की जो एजुकेशन है 3+ ईयर में और 4+ जो ईयर है कि नर्सरी और KG जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये करिकुलम जो है वो उनको करवाया जाता है। तो इन 5 दिनों में इन सभी मास्टर ट्रेनर्स जो है वो इनको पूरी ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी और आगे जा कर के ये खंड स्तर पर जो है वो बाकी टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। और हमारी कोशिश है कि हम सभी के सभी जो 778 टीचर्स हैं उनको बिफोर नवंबर जो है वो बाय 30th of नवंबर जो है वो हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ताकि बच्चों की जो विंटर क्लोजिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है वो टाइमली एग्ज़ाम बच्चों के हो पाएँ और ट्रेनिंग भी टाइमली जो है वो कंप्लीट हो पाए। थैंक यू। हम लोग जो है वो फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स पर काम करेंगे। उस पर बच्चों को हमने कैसे उन लोगों की सूक्ष्म मांसपेशियों को हमने विकसित करना है, उस पर हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर एक डेमो के साथ ये काम करेंगे। और इससे क्या होगा कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से स्कूल्स में जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो आज IAS HAS बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। इसका सारा श्रेय आप अध्यापक साथियों को जाते हैं और इतने अच्छे से आप वर्कशॉप में भी मेरा साथ दे रहे हैं। एक बार क्लैपिंग हो जाए सभी अध्यापक साथियों को। तो अभी
हम जो कर रहे हैं वो ग्रॉस मोटर्स को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों की। तो सबसे पहले हमारे बीच में मैडम जी आ गए हैं, उमेश मैडम इनके साथ एक्टिविटी शुरू करवाएंगी जी। तो जैसा कि सर ने बताई दी कि ग्रोथ मोटर की एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं, तो इसमें हम एक कंटिन्यूम को फॉलो करेंगे। हम पहले एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने टेढ़ी मेढ़ी रेखा पे जो है वो पैर के साथ पैर जोड़ के आगे चलना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, हम जो है वो बुक सर पे रख देंगे और बोलेंगे कि हाथ भी ऊपर कर दो। इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 हो जाएंगी, फिर आगे चलने के लिए बोल देंगे। मतलब इजी टू कॉम्प्लेक्स बच्चों को लेके जाना है और फिजिकल डोमेन में जो हम काम कर रहे हैं। तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो मैम पहले आपने जो है पैर के साथ पैर मिला के जो है वो बिल्कुल आगे चलो। बिल्कुल पैर के साथ पैर मिला के चलें जी। और थोड़ा सा क्लासरूम एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और अपने अपने ग्रुप के जो है वो उत्साह भी बढ़ा सकते हैं। मतलब थोड़ा पीछे जाए, हाथ ऐसे। अब आपने कदम से कदम मिला के जो है वो वहां तक पर नीचे नहीं देखना है। हाँ जी, कदम से कदम मिला के लाइन के ऊपर पैर रहने चाहिए आपके। हौसला बढ़ाते रहे। हाँ बिल्कुल, अपने अपने ग्रुप जो जिस ग्रुप में हम हैं कदम से कदम, पैर से पैर आगे, पैर से पैर ये पंजे के साथ टच होना चाहिए। ओके जी, अब नारद जी आप भी शुरू स्टार्ट करें। हाँ जी, कौन सा ग्रुप है? पैर मिला ले पंजे के साथ ऐसे। ग्रुप कौन सा है जी? ग्रुप 2 की आवाज नहीं आ रही है भाई, अपने साथी का तो थोड़ा उत्साह बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज जब करेंगे तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। उनके साथ हम खूब बच्चा बनना पड़ेगा हमें, तभी बच्चा जो है वो पूरी तरह से विकसित होगा। बहुत बढ़िया। तो जी ग्रुप नंबर कौन सा है जी? पैर में नहीं, पंजे नहीं मिल रहे सर, ऐसे बिल्कुल। मैम आ गए थोड़ा। अच्छा उत्तम जी आओ आओ सर बाकी की एक्टिविटी को करवाएं। हाँ बिल्कुल, एक जन आ जाए, एक आ जाए। अरे ठीक है बच्चे गिराते हैं वो सही। मैं प्लीज अपनी अपनी जगह पर आ जाएं सभी, और आप सभी क्लैपिंग के साथ जो एक्टिविटीज में अपने पार्टिसिपेशन देगा उनके लिए आपके उत्साह को बढ़ाना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अभी पांगी में जो हमारी वर्कशॉप रही, पांगी में वहाँ के अध्यापक साथियों ने खूब बढ़ चढ़ के साथ दिया, लेकिन वहाँ पर एक डेमो जो था ना वो हम लोगों को थोड़ी सी एक दिक्कत तो नहीं, मैं कहूँगा हमारे लिए चैलेंज था कि बच्चे भी वहाँ पर थे और वो बच्चे झिझके हुए थे, थोड़ा सा सहमे हुए थे। और उसी वर्कशॉप में जो अध्यापकों के साथ हम अभी एक्टिविटीज करवा रहे हैं वही एक्टिविटीज हमने उन बच्चों के साथ करवाई। और स्टार्टिंग में वो बच्चे इस तरह से सहमे थे, इस तरह से थोड़े झिझक रहे थे, तो मैंने उनको अपने साथ इन्वॉल्व किया और इन्वॉल्व करने के साथ साथ जैसे ही उनको एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट करवानी शुरू किया वो बच्चे खोलना शुरू। और लास्ट में वो बच्चे जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज होती रही वो बच्चे इतने इन्वॉल्व हो गए कि वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। जो उनके पेरेंट्स वहां पर आए थे इतने खुश होकर गए, उन्होंने वहां पर वो देखा और मैंने महसूस किया कि हम बच्चों के साथ जैसे इन्वॉल्व होते हैं खुद बच्चे बन जाते हैं और बच्चे जो है वो बड़े अच्छे से हमारे साथ अपनी पार्टिसिपेशन हम सब के बीच में देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज यहाँ पर रहेगी और हमें चाहिए 2 लोग जो इस एक्टिविटी में अपनी पार्टिसिपेशन देना चाह रहे हो। अपने आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। 4 और 5 से पढ़ेंगे, 4 और 5। अच्छा 4 और 5 एक ग्रुप नंबर 4 से आ जाए, ग्रुप नंबर 5 से आ जाए। ओके जी, यहाँ आएंगे आप। एक काम करते हैं जी, पहले चाय कम है लेकिन 2 चलते हैं पहले, अगर उसके बाद कोई और करना चाहे तो फिर 2 से करते हैं ना। 4 और 5 से आ जाए, फिर 6 7 से हम बुलाते रहेंगे ना। 4 5 आप लोगों का ग्रुप है? अच्छा 4। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सर बैलून हमने क्या करने हैं, संदीप जी यहाँ पर रखेंगे बैलून, आप लोगों ने काम करना है। अच्छा सभी थोड़ा सा ना एक काम कर सकते हैं, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर ध्यान से आप खड़े हो जाइए, देख लीजिए
ये एक्टिविटी हम कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर वो एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके जी, अच्छा ये एक्टिविटी मैं तब शुरू करवाऊंगा जब आप थोड़ी सी ना एक राउंड में आ जाए और थोड़ा सा क्लैपिंग इन दो जो हमारे प्रतिभागी हैं इनके लिए आपकी करनी चाहिए, बस इतनी सी जोर से होनी चाहिए। ओके जी, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपने करना क्या है, थोड़ा सा झुकना है और इस बैलून को फूंक मारते हुए उस लाइन तक पहुंचाना है। जो पहले पहुंच जाएगा वो जीतेगा। ठीक है जी, रेडी है आप लोग? समझ के बाद यहां से इसको शुरू करेंगे ऐसे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा सा क्या था कि यहाँ पर स्पेस कम था, लेकिन आप लोग बच्चों के साथ बड़े अच्छे से कर सकते हैं। कोई और दो आना चाहे तो आ सकते हैं। कौन थे जो आए थे? उत्तम जी, एक आप थे और आजे रख दे जी। संदीप जी, एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना, रास्ते में नहीं आना। ओके, हम नहीं आएंगे, अगर ये आ गया तो फिर देखो। हाँ जी, ओके जी, मेरी तरफ रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। और जब हंसी आती है तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें वहां हंसना नहीं चाहिए, पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नहीं रोक पाते कि हम ना हंसे। तो मतलब ये भावनाएं जो है, ये हमारा जो भी व्यवहार है वो भावनाओं के ऊपर ही डिपेंड है। तो अब हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की। यहाँ पे अब 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों की ही बात हो रही है, क्योंकि ब्रेन का लॉजिक जो है वो उसी से रिलेटेड है। तो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो वो चैटर बॉक्स बन जाते हैं और टॉय लवर होते हैं। उन्हें अपने टॉय से बहुत प्यार होता है, अपने रिलेशनशिप से बहुत प्यार होता है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन बच्चों में कौन कौन सी भावनाएं होती हैं, कौन कौन से इमोशन जो वो इन बच्चों में होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेम्पर। इन बच्चों में टेम्पर होता है। क्यों होता है इनको खुद को भी पता नहीं होता है। कई बार बच्चे को की कोई नीड जो वो फुलफिल नहीं हो रही है, उसको कोई मान लो कि कोई वो टॉय लेना चाह रहा है, वो नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो अपने आप को वो बता नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अपनी भावनाओं को कैसे निकालेंगे? टेम्पर के थ्रू, चिल्ला के निकालेंगे। ठीक है। तो दूसरा होता है, इन बच्चों में मूड स्विंग बड़ा ज्यादा होता है। बच्चा मान लो कि माँ की गोद में है बच्चा, या माँ के पास बच्चा है, या माँ बच्चे को जब स्कूल छोड़ने आती है तब तक बच्चे का बिहेव जो वो नॉर्मल है। ठीक है। जब माँ जो है वो बच्चे को स्कूल में छोड़ के घर चली जाती है तो उसका रोना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि माँ जो वो गेट से वापस आ जाए तो वो एकदम से चुप हो जाएगा। ठीक है। अगर हो सकता है कि टीचर उसको अपने हिसाब से एंगेज कर ले तब भी वो चुप हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि उनमें मूड स्विंग जो वो बहुत ज्यादा होता है। और तीसरी बात करेंगे, उनमें इंटेंस इमोशन होते हैं। जो मोस्ट इमोशन है उनमें वो टिकाऊ नहीं है, जो भावनाएं है वो टिकाऊ नहीं है। ये नहीं कि वो रो रहा तो रोता ही रहेगा पूरा दिन। इंटेंस इमोशन का मतलब है कि आजकल का सबसे प्यारा खिलौना बच्चे का फोन है। मान लो कि बच्चे को फोन दिया, टीवी का रिमोट उसका सबसे प्यारा खिलौना है। फोन जो वो आज की जो हमारी जनरेशन है उस टाइप की है। बच्चों से फोन ले लिया जाए, बच्चा जो है वो रोने शुरू कर देगा, जिद करेगा, चिल्लाएगा, पूरा घर सर पर उठा लेगा। ठीक है। फोन उसको वापस दे दिया जाए तो बच्चा जो वो चुप हो जाएगा। अब टीवी पर वो कार्टून देख रहा है, रिमोट एकदम से किसी ने ले ली कि मुझे न्यूज सुननी है, मुझे कुछ और देखना है, तो बच्चा जब रिमोट ले लिया जाएगा तो फिर से चिल्लाने लग पड़ेगा। तो जैसे उसको वापस दे दिया जाता है तो उसका जो भावना है वो खत्म हो जाती है उसी टाइम, और वो चुपचाप कूल हो जाता है, काम एंड कूल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि बच्चों में होता क्या है, स्क्रीमिंग होती है बच्चे की। स्क्रीमिंग, चिल्लाता है वो, जरा सा किसी ने हाथ में लगा दिया जोर से चिल्लाएगा वो, या किसी ने जरा सा छेड़ दिया, या जिस खिलौने के साथ वो खेल रहा है वो थोड़ी देर के लिए ले ली जाए तो वो चिल्लाएगा।
स्क्रीमिंग होती है बच्चों में, है ना। उसके बाद बात करेंगे पॉजिटिव नेचर होता है बच्चे का, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर, खासकर अपनी माँ को लेकर, अपने फादर को लेकर बच्चा जो वो काफी पॉजिटिव होता है। अब माँ कोई बच्चे को किसी के बच्चे को जरा सा गोद में ले ले या थोड़ा सा प्यार कर दे तो वहां पे वो फिर से उसके जो एकदम काम एंड कूल था बच्चा और उसकी भावनाएं जो फिर से वो उसमें आ जाएगा, या चिल्लाएगा या माँ को खींचेगा, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो माँ को मारने लग पड़ेगा। तो बच्चे में ये होता पॉजिटिव नेचर होता है। और एंगर होता है बच्चे में, गुस्सा होता है। गुस्सा जो, एक बात मैं हाउस से पूछना चाहूंगी कि गुस्सा जो सिर्फ जबान से ही व्यक्त किया जा सकता है या कुछ और भी होता है। या स्कूल के बच्चों की बात करें तो उनको पता ही नहीं कि जवाब क्या होता है। बोलेंगे तो जवाब दे रहे हैं, इसको जवाब बोलते हैं, मैं तो अपनी बात पर रिप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, टोन का पता नहीं कि बड़ों के साथ किस टोन में बात करनी है, किस टोन में बात करनी है बड़ों के साथ। अब कभी भी बड़ा ही होगा तो आके चाहे अपनी दोस्त की तरह जफिया लगना शुरू कर देंगे। बच्चे, स्कूल के बच्चे भी ऐसे करते हैं। मेरे वाले बच्चे जो है स्कूल के वो मेरा पल्लू पकड़ के चले रहते हैं, चाहे मैं क्लास में हूँ चाहे दूसरी क्लास में हूँ। मतलब बच्चे एक टीचर से क्या चाह रहे हैं, बच्चे जो एक माँ बाप जो अपने टीचर में ढूंढते हैं जब उनको वैसा माहौल दिया जाए तो ये इनमें भावनाओं की बात हो रही है। और लास्ट की बात करूंगी मैं, इनमें इंसिक्योरिटी बढ़ जा रही है। इंसिक्योर होता है बच्चा को मैंने बात की कि बच्चा टॉय लवर होता है, टॉय लवर होता है बच्चा। अपनी रिलेशनशिप को लेकर जो वो बच्चा जो वो काफी इंसिक्योर रहता है। कोई उसको बस डर रहता है कि इवन एक छोटी सी पेंसिल बच्चे से ले ली जाए ना तो भी इंसिक्योर हो जाता है कि ये वापस नहीं करेगा, तोड़ देगा, इसको मरोड़ देगा। तो ये ऐसी भावनाएं तो बहुत ज्यादा है बच्चों में। पर थोड़ी सी हमने ये बात की कि बच्चों में जो वो इमोशनल किस तरह के होते हैं। अब थोड़ा सा मैं हाउस से जानना चाहूंगी कि इमोशन जो है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। ये मैंने सारी बातें की, इसमें कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। तो हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इमोशन क्या है इसमें नहीं, और जो भी बच्चों में पॉजिटिव इमोशन होते हैं उसकी बात करेंगे हम। खुशी एक्सप्रेस करना, बिल्कुल सर। और लव, कोऑपरेशन, बिल्कुल। और पॉजिटिव कुछ एक इमोशन जो वो पॉजिटिव हो गए कुछ नेगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव में क्या क्या ले सकते हैं, मुझे एक ग्रुप से प्लीज एक व्यूज आएगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा। मैम पॉजिटिव टुवर्ड्स रिलेशन जो होता है। हाँ जी बिल्कुल सर। और ग्रुप वाइज एक व्यूज दे प्लीज। पॉजिटिव इमोशन क्या क्या होते हैं। ग्रुप नंबर 2। अच्छा, 2 का आंसर था। एक ग्रुप नंबर शेयरिंग, हाँ बिल्कुल। और ग्रुप नंबर 3 लव, बिल्कुल सर। ग्रुप नंबर 4 रिस्पेक्ट, बिल्कुल सर। ग्रुप नंबर 5 कोऑपरेशन, ग्रुप नंबर 6 ग्रुप नंबर 6 कोई भी एक शब्द है, एक वाक्य जो भी इमोशन की तुम बात करें, मैं बात करें पॉजिटिव इमोशन क्या हो सकता है इसमें। हाँ बिल्कुल। ये नहीं है कि सारी भावनाएं गलत है, ऐसा भी नहीं है कि सारी भावनाएं जो वो गलत है, कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में। पॉजिटिव में क्या क्या क्यूरियोसिटी, बच्चे जो उत्सुक होते हैं हर एक चीज को लेकर, ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है बच्चों का। अब बच्चे जो वो उत्सुक होता है कि अपनी टॉयज को लेकर कार चढ़ रही है तो कैसे चढ़ रही है, कौन सा पार्ट इसको चला रहा है, तोड़ेंगे खोलेंगे देखेंगे कि कौन सा पार्ट इसको चला रहा है, तो उसको उत्सुकता है उसमें, वो उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ये होनी चाहिए। और उत्सुकता जिस बच्चे में उसको हम शांत करना भी हमारा, जैसे बीइंग अ पेरेंट्स बीइंग अ टीचर जो को हमें सुबह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि